2024 has been awful for the adult film industry. Recently, adult film stars have been dropping like flies. Cagney Lynn Carter, dead at 36 from taking her own life. Sophie Leone, dead at 26 from a suspected homicide. Jessie Jane, dead at 43 from an overdose. Thina Fields, dead at 24. At the time of this video being recorded, Emily Willis is in critical condition from an overdose and her family is expecting the worst. It seems like every week I've been hearing about some adult film star just randomly dying. So what the fuck is going on? Or better yet, what is going on in the industry? Well, the adult film industry is probably one of the worst industries to work in ever. Now, that really shouldn't be too surprising. An industry as gross and obscure as porn being a really weird place to work, I mean, no surprise, right? But people don't really seem to grasp just how awful this industry really is and the genuine terrible effect it has on people and on society. So let's cut the bullshit and just get right into it. So, how exactly is the industry connected to all of these deaths? Well, I think a good start is looking at one of the people that I mentioned earlier, Thina Fields. Now, months before she died, she talked about facing serious abuse in the adult industry. It is very difficult to be a woman and create adult content when society is literally in shit. At 24 years old, she was found unalive in her home. But one of the weirdest things is that the cause of her death was not really made available. Now, when interviewed about her death, her friend and fellow adult film star Alejandra Sweet said that I can't really share too many details right now because I'm saddened by the news. Now, the production company that she was signed to, Milky Peru, released a statement on their Instagram dedicated to Thina. We still can't believe this. We refuse to be without you. We would like to see you one more time. We hope someone wakes us up from this bad dream. You will always be in our hearts. Thank you for allowing us to be part of your life. And this is the same production company that she was facing all of this abuse from at the time. It's pretty suspicious behavior, don't you think? Now, I don't want to be a conspiracy theorist here, but maybe, just maybe, it was an inside job. Nah, I'm just kidding. I don't think it's gone that far, but it's still kind of fucking weird. Now, Thina is not the first to open up about the dark side of this industry. In fact, almost every single major adult film star that you can think of has opened up about the abuse, exploitation, and the serious consequences of it. Lana Rhoades, one of the biggest stars out there, has talked about being forced to do certain scenes that she really did not want to do. A lot of porn stars have. A lot of porn stars, they have quit porn, right? At a very early age because just of one scene, because of one experience, one tumhara whatever, shoot or tumhara one person. It was abusive. During my short stint in porn, the really extreme acts were what was popular, and that's why being the #1 performer in the industry at the time, everyone wanted to make money off me, so they pushed me to do these things. And it just gets really extreme, like you were saying, abusive. I don't want to go into too much detail. Like, honestly, some of my experiences are really humiliating for me, and I wish that they never happened. Many adult film stars, both male and female, are and often... I understand बहुत सारे लोग होंगे who want to quickly jump and be like, तुम्हारी choice ही तो है ये. Why did you do it? 2-3 चीजें जो बहुत भयंकर लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं. हर कोई इंसान की ऑटोनॉमी, हर कोई इंसान की डिसीजन लेने की कैपेसिटी हमेशा 100 पे नहीं होती. हो सकता है एक इंसान की कैपेसिटी हो डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग, बट एक मोमेंट चल रहा है. अब इसको हम कहते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स. कोई आपके मोमेंट चल रहा है, सिचुएशन चल रही है आपकी जिंदगी में जहां पे आप स्पेशली वल्नरेबल हो, आप डिसओरिएंटेड हो. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है और उस मोमेंट में आपका कोई बहुत भयंकर लेवल पे फायदा उठा ले जाए, या फिर आपको एक बुरे ट्रैक पे इंसान ले आए, फिर आप अपने आप को एक बुरे ट्रैक पे ले आए जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो और आप अब इसके अंदर आ गए हो, लेकिन आपको उसके अंदर ही अब कहीं ना कहीं फेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, लोग का अप्रूवल भी मिल रहा है, अगल बगल वाले लोग भी इसको कह रहे हैं हाँ हूं. तीसरी चीज, एको चेम्बर. आपका ग्रुप क्या है, आपकी कंपनी क्या है. हमें क्या पता किसकी कहानी क्या है यार. हमें क्या पता कौन इंसान किसी को क्या पहला फुसला के, या फिर किस उम्र पे, किस प्रॉमिस पे, किस भावनाओं पे, किस सपनों में, किसकी बुनियाद पे कोई इंसान किसी को कहां ले आके पटक दे. लेट्स से किसी का घर जिससे वो आ रहा है वो कंप्लीटली ब्रोकन होम है, तो उसको किसी भी लेवल की लेट्स से स्टार्व्ड अटेंशन से, और उसको कोई किसी ना किसी तरह से हमेशा वो दूसरों में अपने माता पिता ढूंढता है, या फिर रोल मॉडल्स ढूंढता है, फिर मेंटर्स ढूंढता है, फिर बहुत भयंकर लेवल के डिपेंडेंसी इश्यूज हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाता है लोगों से, बहुत भयंकर लेवल पे ट्रस्ट कर लेता है. लेट्स से वो इंसान 18 साल का है, लेट्स से वो किसी ऐसे इंसान के साथ मिलता है जो कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, मैं तुम्हारे पिता समान हूं, या हमारी माता समान हूं, तुम्हारी बहन समान हूं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन टाइप हूं, मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा. ये इंसान ऑलरेडी एक वल्नरेबल तुम्हारे ग्रुप से आ रहा है, और वो साइंस का एक इंसान फायदा उठाता है, ट्रस्ट गेन करता है, काइंड ऑफ मेंटोर बन जाता है. तुमको तुम्हारे परिवार से ऑलरेडी जिसके रिश्ते हो सकता है खराब हो सकता है, किसी के रिश्ते ठीक ठाक हो, लेकिन और तुम्हें अलग कर देते हैं. बहुत सारे लोगों की इन तरह की इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिस होती है कि इंसान को कंप्लीटली काट दो उसके घर से,
ऐसे एक इंसान को कंप्लीटली काट दो वेल विशर से, उसकी अटेंशन को, उसकी एडवाइस सीकिंग, सब कुछ को कंप्लीटली अपनी गिरफ्त में रख लो कि अराउंड एक एको चेंबर हो जाता है। फिर आप जिनसे मिल रहे हो लड़कियों से, वो भी वही सेम बिजनेस में है, वो आपको बता रही है, ये तो एक्सपीरियंस ही होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता आप कब ऐसी जिंदगी जी रहे हो जहां पे आपको लगता है सब यही कर रहे हैं, क्योंकि आपके अराउंड वो लोग भर दिए जाते हैं जो कि वो सब वही कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी वही बन जाती है, आप एक बबल में आ जाते हो, आपको व्यूज मिल रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, लोग कह रहे हैं भाई आप सुंदर हो, अरे आप कितने अट्रैक्टिव हो। बाद में यहां पे बोलूंगा बहुत सारे लोग होंगे जो काफी डिफेंड करेंगे सब चीजों को। खुद करो, अपने सारे कपड़े उतार के करो ना, एक बार डालो एक बार ऐसा वीडियो, या फिर अपने किसी मित्र से कहो यार करो, हम सब मित्र दोस्त मिलकर करते हैं। डिफेंड करने से पहले कहो कि क्या मैं खुद 15 वीडियो डाल सकता हूं अपने खुद के दुनिया को देखने के लिए। अपने किसी परिवार वाले को कहोगे, अपने किसी मित्र को कहोगे, अपने किसी सखा को कहोगे, सखी को कहोगे, अपने घर में जो कोई भी किसी को भी कहोगे, अगर ऐसा इतना बिजनेस है तुम्हें डिफेंड करना पड़ रहा है, तो तुम्हारे को ऐसा होना चाहिए अगर ये इंसान कर सकता है तो सबको, जिसको मैं डिफेंड कर रहा हूं, वो एक चीज इतनी ऑनरेबल है यानी मेरी नजर में कि मैं कह सकता हूं कोई भी कर सकता है। ये जनरलाइजेबल है कि नहीं है? या फिर मैं एक बहुत दूरी से, क्योंकि ये स्ट्रेंजर है, इसकी जिंदगी में 1% क्या फर्क पड़ा, इसकी मेंटल हेल्थ में 1% क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एट्रीब्यूट करूंगा खुद से कि इसकी ऑटोनॉमी से ही आ रहा है, इसको तो 100% यही करना था, तो मैं इसको डिफेंड कर रहा हूं। तुझे नहीं पता कुछ भी, सिचुएशनली प्रॉब्लम क्या तुझे नहीं पता, साइकोडायनेमिकली प्रॉब्लम क्या तुझे नहीं पता, बिहेवियरली प्रॉब्लम क्या तुझे नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता, क्लिनिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस इंसान के साथ, जो इंसान को पता भी नहीं हो सकता, उसको प्रॉपर डिसऑर्डर्स हैं, और उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है बैठ के, और वो इंसान एक्चुअली एक वर्लपूल में चले जा रहा है। तुम तो क्लिप्स में देख रहे हो उसको एक्टिंग करते हुए ना, उस इंसान को थोड़ी देखो, तुम उस इंसान को थोड़ी जानते हो, उस इंसान के साथ थोड़ी बैठे हो। कहने को बहुत आसान होता है, क्या तुम पुट कर सकते हो किसी को भी अपने अराउंड? नहीं ना, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है ना फंडामेंटली तुम्हारे दिमाग में उस चीज के साथ, समथिंग इज रॉन्ग विद इट। इसलिए मैं चाहता हूं जिसको मैं नहीं जानता वो करे काम। And forced to do scenes that they really do not want to perform. Now, not every job is perfect. In almost any job that you want to be successful in, you have to do things that you don't want to do. Actors often have to take roles that they don't really like that much in order to boost their career and get recognition. But if you're trying to get your foot into the adult film industry, you don't really get a say. Many scenes often require doing extremely gross and painful things in order to get the job. I'm not gonna describe any of those things, but I think you can use your imagination. Now, a lot of these girls. अरे मैंने तुम्हारे पढ़े में आर्टिकल्स मैं बताता हूँ। एक आध चीज क्या होती है, कई बार तुम जब कुछ चीजें देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत रफ चीज के अंदर जिसके अंदर आ गया, तुम्हें लग रहा है कि अरे यार अबे लड़कियों को कितना मजा आ रहा है, ऐसे करना चाहिए। द थिंग इज कि उनके सामने कैमरा लगा हुआ है, पूरी प्रोटेक्शन है, और वहां पे काइंड ऑफ अब कंसेंट और एक्चुअल में कोऑपरेशन हवा में जा चुका है। अब वो बस कह रही है या अपने दिमाग में उसका ख्याल है कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू एंड नाउ एट दिस पॉइंट, तो मैं कैमरे के लिए थोड़ी सी एक्टिंग कर लूंगी जितनी बची कुछ है, लेकिन ये सीन फन नहीं है। फन तो छोड़ दो, उसके ऑपोजिट है, हॉरिबल है, हॉरिफाइंग है, बट हमें नहीं दिखता। तुम जब देखोगे तुम्हें दिख रहा होगा कि शायद ये बहुत मजा आ रहा होगा, बट तुम्हें पता नहीं इंसान अंदर रो रहा है, और ये चीज तुम कभी जान नहीं पाओगे क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, रफ से रफ चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रीटी श्योर जो हमारे मेल एक्टर्स होते हैं दे टेक ओवर, वो ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो कि शायद बहुत ज्यादा बाउंड्री के उस पार हों। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है। Start in the industry when they're young as 18 years old, as a matter of fact. But oftentimes, many are recruited even younger. Tracy Lords, one of the most successful actresses in her time, was only 15 years old when she started. She used a fake birth certificate and a fake driver's license to claim that she was way older than she actually was and starred in many movies. In the 80s, she was one of the highest paid adult film actresses at the time, earning over $1,000 per day. And this was all while she was only 16 years old. But when she turned 18, the authorities finally looked into the tip that she was actually underage, and they discovered that her credentials were completely fake. The owners of her video agency, Excitement Videos, were arrested, and any film that she starred in was now legally considered child porn. In court, the government prosecutors claimed that Tracy was manipulated by the industry and was drugged to do certain scenes that she did not want to do. However, in her autobiography, she claims that anyone who worked with her never once saw
saw her take drugs and that she was fully aware of her actions. But many of her co-workers and even her sister have heavily criticized the book for lying. Now, this is the most well-known case of underage actors in adult films and probably the most controversial one, because it's kind of hard to decide who to really put the blame on. Was it Tracy's fault for lying to the company by using fake documents that looked real? Maybe the company genuinely did not know. Or should the movie company have done a better job at checking her background and making sure that she really was of age? Keep in mind, it was the 80s. The internet was still pretty new and wasn't very advanced. But that's not really even close to the worst of it. Because one of the worst secrets in the industry easily is the human trafficking. Now, over 4.8... I was just thinking in my mind, and he just said it. क्या 100% इसमें बहुत ट्रैफिकिंग होती होगी? million people globally are sexually exploited, and more than 20% of those people are children. And many of these people are used solely for the purpose of pornography. The #1 site where all Those people. Now, काफी लोग होते हैं ना जो आर्गुमेंट मेक करते हैं कि there is no reason for capital punishment. कोई रीजन नहीं होना चाहिए. Children. भाला दो मेरे को या एक एक्स दो और बताओ कितने उड़ाने हैं. This is, to me, सिंपल. एंड आई डोंट केयर चाहे फ्री विल है इंसान के पास नहीं है, डिसऑर्डर है कि नहीं है, न्यूरो साइंस के बेसिस पे क्या ब्रेन रीजन में हमारे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से इंसान के अंदर प्रोक्लिविटी या प्रोपेंसिटी बढ़ गई है. डजंट फकिंग मैटर. कॉस्ट देखो उसकी क्या है. 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा. चिल्ड्रन जब हम बात कर रहे होते हैं लोग इतने छोटे तक जाते हैं. इस बहुत ही डार्क इंडस्ट्री है. ह्यूमैनिटी की एक बहुत ही डार्क पिक्चर दिखती है तुमको. तो जो देखने वाला है उसको अरेस्ट करना चाहिए. 20-30 साल की कम से कम सजा होनी चाहिए भैया. जो गूगल कर रहा है सब चीजों को बहुत डरावनी चीज हो गई, क्योंकि अपने अगल बगल उसके जो बच्चे हैं किसी के घर के आ रहे हैं, उसके पता नहीं परिवार के आ रहे हैं, वो कहां से उनकी सेफ्टी कौन देख रहा है भाई. और दूसरी चीज जो बना रहा है इनको तो स्ट्रेट अप भाई, स्ट्रेट अप दुनिया के सबसे तुम्हारी मॉर्टल कॉम्बैट लेवल होनी चाहिए मॉर्टैलिटी. तुम मजाक कर रहे हो क्या? एक होता है घर में बच्चे, माँ बाप निग्लेक्ट हो गया भैया, माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे के ऑलरेडी उसमें परखच छोड़ जाते हैं. अटैचमेंट, सिंपल अटैचमेंट पे पढ़ लो तुम. यहां पे है कि कोई एक इंसान है जो एक बच्चे को देख रहा है, फिर कह रहा है इसको किडनैप करो, आई डोंट नो व्हाटएवर, एंड देन इसको यूज करते हैं फॉर दीस पर्पसेस. तुम समझ रहे हो किस लेवल का ईविल है ये? कभी किसी बच्चे के साथ खेले हो जिंदगी में कि देखो कि इस लेवल का मासूम होता है एक बच्चा, क्लूलेसली इनोसेंट, कंप्लीटली मासूम, इतनी बेवकूफ वाली चीजें कर रहा है क्योंकि वो इतना मासूम है. उसको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता 20 लेवल पे कि वो जिस चीज को परसीव ही नहीं कर सकता जो मीनिंग हम अटैच कर रहे हैं कि हा ही हु. बच्चा इतना छोटा प्यारा सा गुल्लू मुल्लू टुल्लू, कुछ नहीं पता उसको, मासूम. एट मोस्ट जेनेटिकली टेम्परामेंट्स मिल गया उसको. कुछ बच्चे हो सकते हैं हाँ अनोइंग कुछ ज्यादा हो, दैट्स इट. एट मोस्ट तुम ये दे सकते हो उस इंसान को, ये बच्चा बड़ा बहुत परेशान करता है यार, दैट्स इट. उसके बियॉन्ड यार. और सोचो कोई इंसान उसको देख के कहता है एक बच्चे को कि दुनिया में सबसे बेस लेवल पे इंसान को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आ जाता है यार. आई वुड इमेजिन 90 to 100% पॉपुलेशन को कहना चाहिए हाँ बच्चों को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है यार. Something I think universally every human being, no matter from which culture, would be like, yes, we agree. फिर एक प्रजाति है जो कह रही है कि अच्छा, अरे बाप रे यार, खोपड़े उड़ाने चाहिए भैया मेरे अनुसार, खोपड़े. all this content has been uploaded is Pornhub, the world's biggest porn site, the site that both you and me have been on before. And if you genuinely have the balls to say that you've never been on it, you're a goddamn liar. In December 2018, a 15-year-old girl randomly went missing after she left her home. The mom did find her daughter 10 months later, but she didn't find her through the authorities. She found her on Pornhub, where she was featured in over 50 videos. Dawn Gianni, a substitute teacher, was arrested after she posted videos of her assaulting her 14-year-old family member on the website. And the only reason the authorities knew— This is what I was saying. ऐसे लोगों पे इसलिए भैया देखो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, और भाई इनके परिवार में अगल बगल जो है वो सेफ नहीं है. about it was because one of her classmates saw the video online and reported it. Rose Colombo was 14 years old when she was kidnapped by 2 men and R-worded for 12 hours straight. They uploaded the footage to the hub and
Several months later, students at her school were sharing the link on MySpace and tagging her. Several versions of this video were uploaded to the site, with one of them having over 400,000 views. Now, over the course of 6 months, she reached out to Pornhub and explained multiple times that she was a minor and that this was assault, and begged them to take the video down, but never got a response. Until finally, she created a new email posing as a lawyer and demanded they take the video down or legal action would occur. And there are many, and I mean many stories just like this. That's true. These are only... That's true. पूरा तुम्हारा एक्सपोज हुआ था. निकोलस क्रिस्टोफ जो न्यूयॉर्क टाइम्स का वन ऑफ द राइटर्स हैं, उसने भयंकर लेवल पे उड़ाई थी इन सब की. उसने देखा कि कितने लेवल की ट्रैफिक, माइनर, ये सब भरा हुआ है इन सब वेबसाइट्स पे. मेन स्ट्रीम जो तुम्हारी वेबसाइट होगी, इनका नाम तुम सब जानते हो. यानी कोई घुसा हुआ है कहीं, किसी को कुछ नहीं पता, कोई बहुत अंदर जाना पड़ रहा है, कुछ नहीं. और उसके बाद जो भयंकर लेवल पे नुकसान हुआ था इन सब का, तो तुम्हारी इन सब ने फिर क्लीन अप किया था. बिकॉज भाई तुम्हारी वेबसाइटों में भरा हुआ है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. जानवर है भाई. पॉर्नहब भी क्या है? फेसबुक की तरह कंपनी है. हमें लगता है यार पॉर्नहब है, हो कोई डार्क सा बेसमेंट होगा जहां पे लोग चला रहे हैं उसमें. तुम असल में जाओगे, बहुत बड़ा ऑफिस होगा, भयंकर लेवल पे ऑफिस बिल्डिंग होगी, सीईओ होगा, शेयर होल्डर्स होंगे, पूरी डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके इंजीनियर्स बैठे काम कर रहे होंगे. इंजीनियर्स जो कि ऑब्वियसली आईटी से पढ़े, मैं लिख के दे रहा हूं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, जिनका काम है इनको बैक एंड पे पूरा चीजें देखना, ये देखना, वो देखना. अच्छी खासी सैलरी मिल रही है भाई, लुक्रेटिव इतना बड़ा बिजनेस है वो. However, one of the most infamous situations that brought attention to this issue was one of Pornhub's partner channels, Girls Do Porn. The website's founder, Michael Pratt, created multiple fake modeling websites and invited women to apply for a modeling gig. He posted ads for these on Craigslist and specifically targeted college towns and wanted women who were 18 to 21 years old. Once the women applied, he then told them that the job they actually applied for was for porn and not modeling. Because, you can't really recruit porn stars through Craigslist. At least I don't think so. Now, these girls were initially offered $2,000 to $6,000 for 30 minutes of shooting. Now, many of the girls, predictably, were hesitant to actually sign the contract and take the gig, even though it was good money for what seemed like very little labor. So Michael tried to manipulate the women and get them to sign contracts in very shady and straight up illegal ways. He hired reference girls, and their job was to earn the women's trust and try and deceive them into signing the contract. What I was talking about, कंपनी, तुम क्या क्रिएट करते हो? एको चेंबर इंसान के दिमाग जिंदगी में क्या क्रिएट करते हो? तुम्हें यहाँ पे देखना है. तुमको ये नहीं चाहिए कि भाई ये इंसान 25 बार गलती कमिट करे. तुमको 99 टाइम्स वो जो नहीं कह रहा है उससे मतलब नहीं है. तुमको एक वल्नरेबल मोमेंट चाहिए. ये बहुत डेंजरस चीज है. तुम 50 दिन कह सकते हो नहीं 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 नहीं, लेकिन तुम्हारे अराउंड हम ऐसा एको चेंबर बिल्ड करेंगे, ऐसे लोग बिल्ड करेंगे, तुम्हारी दोस्ती कर लेंगे तुमसे, तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें गाइड करेंगे, और फिर तुम्हारे खुद की वल्नरेबिलिटी क्या है, तुम कहां से आ रहे हो, तुमको पता नहीं क्या कहानियां बनाई जा रही हैं, तुमको क्या उल्टे सीधे प्रॉमिस किए जाते हैं. भाई मैं यहाँ पे मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री की मैं तुम्हें प्रैक्टिस बता रहा हूं. कॉन्ट्रैक्ट में और सामने बैठ के दुनिया में जितने लोग छोटू हो, तुम लोग एक चीज बड़े होकर जानोगे, इतना झूठ बोला जाता है जिसकी कोई हद नहीं है. स्टार्टिंग में तुम्हारे सामने अग्रीमेंट होगा, ये होगी, तुम्हारे को ये करना है, या फिर ये है वो नौटंकी. उसके बाद जब चीजें होने लग जाती है तो पता चलता है इंसान सडनली नई नई चीजें क्रिएट कर रहा है. उसने जो भरोसे किए थे, वादे किए थे, वो चेंज कर दिए. फिर वो कह रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज, ये सब देखो ना, यहाँ पे तो ये चीज लिखी, वो ऐसे छुपा छुपा की चीजें घुसाते हैं. तब तुम्हें दिखता है अरे भाई दुनिया कितनी वो है. और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेन स्ट्रीम बिजनेस की, मेन स्ट्रीम तुम्हारी डील्स की. लाइक मेन स्ट्रीम कुछ भी तुम्हारा ऐसा कोई नहीं शेम एम से कनेक्टेड हो, बट तुम्हें दिखता है भाई इतनी चोरी चकारी और इतनी ज्यादा दिमाग से इंसान सोच रहा है चीजें कि किसके चाकू कैसे मार सकता हूं. सिंपल तुम्हारे को रेंट अग्रीमेंट्स में तक ये मिलेगा चीजें. तुम अब आओ इधर लेवल पे जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्री में ही खोट है, शराफत से ना करने वाला है ना शराफत उस धंधे में है. तो भाई वहां किस लेवल के झूठ बोले जा रहे होंगे तुमसे, किस लेवल के प्रोमिसेस करे जा रहे होंगे. सिर्फ तुमसे एक बार, तो हमें चाहिए 1% एरर तुम कमिट कर दो. एक बार तुमने जब कमिट कर दिया फिर तो तुम आ गए ना, फिर तो तुम फंस गए ना. By lying to them and withholding certain information. For every contract that these reference girls got signed, they earned $25 to $200. And Michael had these contracts written in a very, very complicated way to make them as confusing as possible. These contracts never once mentioned the website name Girls Do Porn and never mentioned the fact that they would be uploaded to the website, even though they were. To really try and push the girls to sign the contracts, they would get them extremely drunk or even get them to take hard drugs, sometimes against their will. And they also didn't let
any of the girls keep any of the contracts. After the girls signed, they immediately got them to work. Instead of the initial filming for 30 minutes like they were promised, shooting lasted for a whole 9 hours straight. And the content that the girls were filming was so violent and rough that some of them started bleeding down there. The girls were often refused breaks, and the company employees even tried to get the girls to have sex with them, even though that is not part of the business. An employee even forced one of the girls to have sex with him at gunpoint. And even after all of that, more than half of the girls only received a fraction of the money that they were promised. They made up complete BS excuses to try and hog them out of the cash, like, oh, you look too old, oh, you don't look like your picture, oh, your acting wasn't good enough. Complete bullshit. The girls sued the parent company of Pornhub for $80 million, and this lawsuit was huge at the time. Pornhub has historically handled these situations terribly by providing close to no action for non-consensual and underage content being posted to their website. The way their website worked was similar to YouTube, where almost anyone can post to it, and while they may not have encouraged what necessarily was going on, they were profiting from it, which the parent company quite literally admitted to. It wasn't until the extreme rise of controversy and lawsuits, any unverified videos or users were removed immediately. Their history with human trafficking is quite literally so bad that there is a whole Netflix documentary where porn stars talk about the connection from Pornhub to human trafficking, and I highly recommend. It's very much worth checking out. Now, this is all pretty terrible stuff, but how does all of this actually tie into the deaths of the porn stars that we've been seeing? Well, if you look at the death of almost every actress, they usually die from one of two things: drugs or taking their own life. There is a very high correlation of people who are sexually traumatized and abusing drugs and alcohol and self-harm. From a UCLA study, more than 50% of porn stars reported using marijuana, 1 in 5 reported using cocaine, and 1 in 5 reported using ecstasy or Xanax. And 1/3 also said that they used hard drugs sometime within the last 3 months. And so basically, these drugs काफी prevalent है. इसका मतलब ये हुआ. Again, तुम जिस echo chamber में रह रहे हो, वहां पे जो भी चीज normal होगी, normative होगी, वो चीज इंसान करने लग जाएगा, क्योंकि प्रथा समझ वाली चीज हो जाती है ना कि ये तो हम सब करते हैं, यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है. Reported data, so those could be a lot higher stats. Precisely. Second चीज मैं ये बोलने वाला था. Many of these women are using drugs or self-harm to most likely cope with the trauma they experienced or to try and hide the shame of their career. Or they already had problems. On top of that, they started doing this. This has तुम्हारे exacerbated जो उनकी already existing problems थी. अब उसको हम cope करने से जो भी उसके symptoms हो रहे हैं या उसके जो भी problems create हो रही हैं जिसकी वजह से अब हमको dull down करने के लिए हम ये कर रहे हैं. Most of the time substances इंसान over the period of time इसलिए use कर रहा होता है because one of the reasons लोग कर रहे होते हैं is to numb something down. Hence why we see so many overdoses and people taking their life. Riley Reid, one of the biggest names in the industry, talked about how her career basically completely ruined her personal life. I've lost my whole family and it sucks. So a lot of times when people ask me if they should do porn, I tell them no. I tell them that it makes life really hard. It makes dating really hard. It makes your family life really hard. It makes intimacy hard. If you're putting yourself out there and the world is now judging you, you have to be okay with being shamed every day of your life. I don't even want to have children because I do porn because I'm worried of the way that people will treat my child. With me personally, my mom was supportive in the beginning. She kind of just let me do whatever, that I think it was a good thing. I had a lot of freedom. As time progressed and I became successful, I started to feel like my mom was using me so that she could live a more luxurious lifestyle. This is what I was talking about. क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन आता है, इंट्यूटिव रिएक्शन आता है कि हम कहेंगे भाई तुम्हारी चॉइस तो थी, तुम ही तो कर रहे थे, और भुगतो और करो. अब तुम्हें इसने काइंड ऑफ ग्लिम्स दी कि कैसे जिस इंसान पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, जो कि किसी की माता हो गई, एक भयंकर वल्नरेबल स्टेज पे उस इंसान ने जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था इस इंसान को. एक छोटी सी बात कहो, मैं कहूंगा 90 आउट ऑफ 100, 99 आउट ऑफ 100 माताएं, स्पेशली अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, फिर हम एन देशों की बात कर रहे हैं, तुम अगर अटर कर दो कोई भी गलत चीज कर रहा है कि मम्मी मैं सोच रहा हूं मैं सिगरेट पी लूं आज, 2 तमाचे जड़ जाएंगे, फिर तुम्हें पता है आंसर क्या है, इंस्टिंक्टिवली तुम्हें आंसर पता है. क्यों? क्योंकि माता पिता का रोल होता है प्रोटेक्ट करना तुमको, और एज स्मॉल एज सिगरेट तक भी ऐसे देखा जाता है जैसे कि तुम्हारी एक विनाशकारी चीज है ये.
वहीं पे इस इंसान ने तुम्हें बताया कि इसी तरह की माता, जैसे तुम्हारी माता, हम सबकी माता, एक माता है जो अपने बच्चे से कह रही है तुम करो ना। एक बच्चा जो कि भयंकर लेवल पे तुम्हारा हो सकता है माइनर हो, जब ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हो, एक्सपोजर मिला हो इन सब चीजों का, हो सकता है एक बहुत ही छोटी सी उम्र में माता ने क्या एक पैटर्न क्रिएट किया कि अप्रूवल तुम तभी मिलेगा माता का बेटी की तरफ जब तुम माता को किसी लेवल की स्पॉटलाइट दोगे। तो तुम बचपन से बच्चे को मॉडलिंग की दुनिया में घुसा देते हो। बच्चा 11 साल का है लेकिन बच्चे को तुम एक नार्सिसिस्टिक दुनिया में घुसा दे रहे हो जहां पे बहुत दो कौड़ी के लोग हैं, एक्सप्लॉयटेटिव एजेंसीज हैं, एक्सप्लॉयटेटिव एंटिटीज तुम्हारे अराउंड सराउंड कर रही हैं, और वहां पे माता फेम सीकिंग बच्चे के द्वारा कर रही है। तो हमारे यहां पे एक्चुअली जो स्टडी कर रहे हैं वो है माता कौन है, माता की पर्सनैलिटी क्या है, माता कैसी इंसान है। क्योंकि ये एक बच्चा था जो कि जो मां कह रही है अगर मां ने ओके कर दिया तो वो करता चला गया। फिर आज हो सकता है उस लाइफस्टाइल को एक्वायर करने में, क्योंकि भैया इसको लगता होगा कि भाई तभी मेरे घर वाले, मेरी मां मुझसे खुश होगी, और अगर मेरी मां मुझसे नहीं कह रही गलत है। जो इंसान जिसको सेट करना है बाउंड्रीज, समझाने की कि भाई आइडेंटिटी क्या होती है, मॉरल्स क्या होते हैं, को तो देना बनता ही बनता है ना माता पिता का कि सही गलत क्या है। यहां पे ये लड़की एक प्रोडक्ट है एक आई थिंक बहुत ही डिसफंक्शनल पेरेंट के, एक बहुत ही खराब पेरेंट के, एक सेल्फ अब्सॉर्ब नार्सिसिस्टिक पेरेंट के, जिसने अपने बच्चे को यूज किया। एंड अब आई थिंक ये ग्रो कर रही है एंड इसकी उम्र हो रही है, क्योंकि आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम शी वाज सो एंग्रोस्ड प्रॉब्ली इन परफॉर्मिंग, इट मस्ट हैव ट्रांसलेटेड इन हर माइंड एज द ओनली सोर्स ऑफ गेटिंग लव। जितना ज्यादा बेटर मैं परफॉर्मेंस या परफॉर्मर बनती चली जाऊंगी उतना ज्यादा शायद मुझे प्यार मिलेगा। अगर लोग मुझसे पागल की तरह मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और मेरे को अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो शायद आई एम लाइक्ड। देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी शी इज स्टार्व्ड फॉर लव एंड अफेक्शन इन लाइफ, कि तुम जितनी बेहतर वे में ये करोगे तुम्हें उतना ज्यादा अप्रूवल मिलेगा। और अगर इंसान स्टार्व्ड है उस चीज के लिए तो भाई वो करने लग जाएगा ना पागल की तरह उसको। फिर उसके अंदर तुम ऐड कर रहे हो, पैसा आ रहा है, उसके जो अलग तुम्हारा रिवॉर्ड हो सकता है, भयंकर लेवल पे पैसा भी मिल रहा है तुमको, भयंकर लेवल पे लोग तुम्हें वाहवाही कर रहे हैं जिसको तुम समझ रहे हो अफेक्शन है, बट वो अब यहां पे तुम्हें लोगों की भी माया तुम्हें समझ में आ रही है। लोग, इंसान, पब्लिक भी थोड़ी सी वैसी है। मैं ये बात पता है 5 या 4 साल से करता आ रहा हूं मैं, इसलिए मुझे फेम फॉलोइंग इन सब चीजों मतलब नहीं है। जो भी इंसान तुमको आज कह रहा है वाह वाही, 2 सेकंड लगेंगे इनको पलट कर तुम्हें गाली बकने में। इंसान के लिए हर कुछ तमाशा है सिवाय अपने खुद की जिंदगी के। एक मन में बुनी हुई रियलिटी से अगर तुम कंपेयर ना करो इसको कि हर एक इंसान को ऐसा होना चाहिए और इसने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं इसको जज कर रहा हूं, और मुझे यहां पे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। अगर तुम बात करने ये छोड़ दो, तुम देखो इसकी कहानी में तो पता चलेगा ओके आई कैन सी वेयर और व्हाट लेड टू दिस, मे बी आई हैव अ हाइपोथेसिस। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ घटित हुआ है, हर एक में बताता हूं इंसान एट द एंड चाहता प्रेम सुख शांति ही है भाई। श्योर हम पैसा भी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं भाई पैसे की कॉस्ट ये ना हो, जैसे अभी बोल रही है कि भाई सुख शांति प्रेम और सोशल स्टैंडिंग सोसाइटी में उसके पर खर्चे उड़ जाएं। कोई नहीं चाहता ये। और ये बात लोग कई बार नीचे कमेंट लिखते हैं अरे एटलीस्ट उसने मिलियन तो कमा लिए, तू भी कमा लेना फिर ऐसे करके। अपने घर में भी तेरे लोग हैं, क्या तू करवाएगा? सोच सकता है ऐसा? तू क्या बोल रहा है? क्योंकि तू अपने आप को एक डिस्टेंस पे पुट कर रहा है और उनको एक अलग एंटिटी की तरह देख रहा है, जिनको तू एम्पैथी की तरह देखना नहीं चाहता। तू उनको सिर्फ एक डीह्यूमनाइज्ड टूल की तरह देख रहा है और कह रहा है इस डीह्यूमनाइज्ड टूल ने पैसा कमा लिया ना, लेकिन इंसानियत के नजरिए से नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि मेरे को अभी क्यों लोड लूं मैं इंसानी नजरिए से देखने का। ये है सत्य। Style. When I started to set like these boundaries, not giving her money or things like that, it made our relationship a bit more difficult and almost toxic. And so it sucks. I don't have a mom anymore. There you go. जहां मां को जो असली में चाहिए था, बेटी नहीं चाहिए मां को। मां को एक कैश मशीन चाहिए थी, और जहां बेटी जो कैश मशीन की तरह वो देखती थी, कैश मशीन बंद हुई, बेटी से रिश्ता खत्म हो गया। सोचो ऐसी मां जिसको अपनी बेटी नहीं चाहिए, कुछ भी करा दूंगी बेटी के, चाहे फिर जिंदगी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, मेंटल हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या, कौन है बेटी के अराउंड? कैसे लोग हैं ये जो उससे बातें कर रहे हैं, कंटेम्परेरी से मित्र बोलते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, इसको क्या सेवन करा रहे हैं, किन लाइफस्टाइल में इसको भागी बना रहे हैं या भागीदार बना रहे हैं। I don't talk to her. I miss having a mom. I feel like you can't rewind and you can't go back. I don't have that relationship with her anymore. I don't ever think I will. And that bums me out. Bums me out a lot. I talked to my dad and he struggles with my job. Which father won't? So I'm pretty sure इसकी माँ पिता डिवोर्स्ड हैं। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। चाइल्ड ऑफ जो डिवोर्स होता है, अब डिवोर्स में भी भयंकर लेवल पे वेरिएंस है। हर एक चीज को एक बॉक्स में मत डाला करो। डिवोर्स मतलब एक हमें क्यों मिल गया डिवोर्स वर्ड हमने रख लिया और उसके नीचे हमने चाइल्ड रख दिया। नहीं भाई, 500 घर
जिनमें अगर डिवोर्स हुआ है 500 की तुम्हें हो सकता है, कुछों में हो सकता है एक बॉक्स में आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा डिवोर्स काफी सिमिलैरिटी दिख रही है, वो एक पूल है, एक पूल होगा या फिर काफी पूल होंगे जो बहुत छोटे हैं, जहां पे लोग फंक्शनल रिलेशनशिप्स भी रख रहे हैं, जहां पे डिवोर्स हुआ है लेकिन कोई एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी नहीं थी, जहां पे लोग अभी भी बहुत अच्छे को पेरेंट्स हैं, जहां पे कुछ लोगों ने रियलाइज किया यार चीजें वर्क नहीं कर रही या फिर हमारी पर्सनालिटी बहुत अलग है, यहां पे हो सकता है कोई इंसान वर्कaholic था या फिर हो सकता है कोई समझ रहे हैं अलग रीजंस वजह से 50 लोग हो सकता है बहुत ही कंप्लीटली डिवोर्स हो। सिर्फ डिवोर्स वर्ड सुन के पहले एक क्यू पकड़ के सबको एक ही जगह पे पेंट मत कर दिया करो। अब हम बात कर रहे हैं जिनके घर में डिवोर्स जो हुए जो कि बहुत ही वायलेंट डिवोर्स थे, यानी कि बहुत सारा उसमें घर में बहुत कुछ वो था और डिवोर्स कंप्लीटली टोर अपार्ट द चाइल्ड, वो आता है डेफिनेशन में चाइल्डहुड ट्रॉमा के भी। समझ रहे हो, हम यहाँ पे अगेन हम पॉसिबिलिटीज खेल रहे हैं, हमारे पास डेटा नहीं है, बट अगर डिवोर्स हुआ है और अगर वो उस तरह का डिवोर्स था तो यहाँ पे क्लियरली हो सकता है ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से आ रही है। दूसरा चीज, तुम्हारे को हमें नहीं पता इसका बचपना क्या रहा है। अगर माता सिर्फ सेल्फ एग्रॉस थी, सेल्फ एब्सॉर्ब थी, हो सकता है भयंकर लेवल पे इसका अटैचमेंट स्टाइल बिल्कुल मेस्ड अप हो। तो ये सब चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ डिवोर्स में शायद कस्टडी माता जी को मिली है, पिताजी को मिला ही नहीं, तो पिताजी के पास पावर ही नहीं थी इसकी जिंदगी गवर्न करने की। तो भाई माता जी ने कंप्लीटली यूज किया और मेरे ख्याल से अगर माता ऐसी है जिसने अपनी बेटी को नहीं हुआ तो तुम समझ लो तुम बात कर रहे हो बहुत ही खतरनाक लेवल पे नार्सिसिस्ट की, जो कि सिर्फ अपने लिए जी रहा है, बच्चे को भी उसने टूल रखा सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए, अपनी जो मन में मन घड़ंत आपने इमेज बना रखी है उसको फीड करने की। being in the industry. एक बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया आपने। He's also religious. Recently, I wanted to go visit him, and he said that I can't go visit because his wife, my stepmom, doesn't want me there. I'm not allowed to go visit my dad anymore because my stepmom doesn't like that I do porn. But then he told me that when I was like, can we like go get coffee and like we could go like get breakfast? And he's like, I don't want to be seen in public with you. And that just hurt so bad. And it sucks. I lost my family. एंड यहीं पे अब इसको जक्सटापोज करो विद ऑल हर पॉडकास्ट, जहां पे लोग जो पॉडकास्ट होस्ट करने वाले हैं उनको क्लिप चाहिए, तो हम जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वो है ही कि राइली रीड या फिर ये जो भी आ रही हैं ये हमें ये ऐसा मटेरियल देंगे जिसकी वजह से व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। तो एक ऑलमोस्ट हम बाय डायरेक्शनल एक फीडबैक लूप क्रिएट करते हैं जहां पे पब्लिक ही इनको इस रूप में देखती है, जो कि हम ये बात सुनना ही नहीं चाहते इसके मुंह से। हम सुनना चाहते ये बात करे टेढ़े मेढ़ी घटिया घिनौनी डर्टी इन सब चीजों के बारे में और बहुत प्राउडली बात करे, क्योंकि जो इसका कैरेक्टर मैं देख रहा हूं पॉर्न में वो चीज टूटे ना, वो विनियर ना टूटे और तुम्हें वो चीज दिखती है। कितने इसके इंटरव्यूज है, मेरे को याद है मैंने लोगन पॉल उनका देखा था, मेरे वो हो गया था कि यार समाज का क्या हो चुका है, क्या बोल रही है बेवकूफ लड़की कि इसको क्या। अब इसका ये देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि वो भी कैरेक्टर था, इसको पता है मुझे कैरेक्टर मेंटेन करना है और वहां पे दो साइकोपैथ बैठे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, जो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं भाई, हमें अपना जो ब्रांड है उसको ऊपर ले जाने के लिए हमें फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन कॉस्ट क्या है। यही है दुनिया। पता है बहुत लोग समझते नहीं है, जो बहुत टॉप की दुनिया है ना, जो लोग बहुत लोग कहते हैं जैसे कुछ भी करने को तैयार है, और हम इनको बड़े नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ बड़े एडमिरेशन की तरीके से देखते हैं, बिलियनेयर मिलियनेयर ये वो। हमें ये बताओ कितने इंस्टेंसेस में इंसानियत को ऊपर रखा। अच्छा इंसान होने का प्रतीक ये है, हमें अच्छे इंसान से मतलब ही नहीं है हमें, क्योंकि सिखा दिया गया मूवीज में भी एंड काइंड ऑफ एक अट्रैक्शन होता है डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स के प्रति, एक फिक्शनल सेंस में हम कह सकते हो, हमें देखने में मजा आता है। लेकिन भाई उसका सेलिब्रेशन मत करो, क्योंकि जब उसकी रियल कॉस्ट देखोगे ना तो उन्होंने इंसानों के शरीरों के ऊपर अपनी करियर बनाया है, उन्होंने तबाह किए इंसानों को, इंसानों की वल्नरेबिलिटीज को, डिसऑर्डर्स को। कोई इंसान अगर कमजोर है उसकी उस पर बुली करके, लोगों के धंधे उड़ा के, बिट्रे करके, किसी की पर्सनालिटी टाइप क्या है वो फाइट नहीं करना चाहता, तो तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको तबाही कर दिया, उससे छोटा सा बिजनेस तबाह कर दिया। ऐसे बढ़ते हैं लोग, इन्होंने घर तबाह किए लोगों के। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि इन्होंने इंसानियत के लिए क्या क्या चीजें करी हैं। अगेन मैं पीआर की बात नहीं कर रहा हूं, रियलिटी की बात कर रहा हूं। एक सेकंड के लिए अपनी एडमिरेशन को रोको, अपनी जो ये है ना कि अरे आइडियलाइजेशन की टेंडेंसी को रोको। सत्य यहां तुम्हें दिख रहा है, उसका बाप बात नहीं करता, जो कि ऑब्वियस बात है। मैं क्यों देखना चाहूंगा पब्लिक में भाई अपनी, शायद हो सकता है उसके और बच्चे हों, एक और उसने और अलग जिंदगी स्टार्ट कर दी, अब उसको शर्म आती हो कि अपनी बेटी से बात तो कर ही रहा है, मतलब वो बात तो करना चाहता है, बेटी तो बेटी रहेगी जिंदगी में। लेकिन भाई ये भी आता है ना उसके बाद फर्क, थिंग्स कांट चेंज, यू मेड चॉइसेस, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, एंड ये सेम चीजें अप्लाई करती हैं तुम्हारे जितने भी ओनली फैंस जो भी ये कर रहा है। और यही बात मैं करता हूं कि भाई जिंदगी लंबी है, जिंदगी सिर्फ 20 से 25 की नहीं है। I don't talk to like my brothers or sisters. Like 40 में क्या करोगे? जिंदगी तो 80 तक जाती है, अंग्रेजों की तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 तक होती है, 60-70 में कंप्लीटली फिट होते हैं ये। 40 के बाद क्या करोगे?
18 तक तो तुम लेट्स से बच्चे रहे, ठीक है, अब 18 से 30 तक तुमने जवानी की जिंदगी 12 साल की तुमने वो जी ली, 30 से 40 तुमने अब रिफ्लेक्शन में बताया, क्योंकि तुम्हारी अब जवानी जा रही है 40 में तो तुम्हारे कोई नहीं बैठ के तुम्हारे को देखना चाह रहा। मैं लिखित में दे रहा हूं 40 की जिस दिन ये टच करेगी, जो नई जनरेशन आ चुकी होगी उनको नाम भी नहीं पता होगा, जैसे जो नई जनरेशन उनको 90 की या 2000 का कौन था उनको उनका नाम नहीं पता। तुम्हें 2000 की जो पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड की, तुम्हें उनके नाम नहीं पता, भी शक्ल दिखा दिया तुमको पता नहीं कौन है। ये है रियलिटी, वो गायब हो चुकी हैं। I think that they all kind of like try to take advantage of me and stuff, or they're just like my dad don't want to be around me. So even with all the horrific things going on in the industry, why work in it? Many of these women choose to work in this career. Most of them can also choose not to, right? That's such a I'm so sorry, but ये काफी अमेरिकन वो है कि फ्री विल, और हम उस पर इतना भयंकर वो देते हैं जैसे कि हमारी डिसीजन मेकिंग एट ऑल टाइम सिचुएशनल फैक्टर्स नहीं है, साइकोडायनामिक यानी चाइल्डहुड फैक्टर्स नहीं है, क्लिनिकल फैक्टर्स नहीं हो सकते, सोशल फैक्टर्स नहीं हो सकते, बहुत सारी लाइफ में हो सकता है कुछ इंसान के फाइनेंशियल फैक्टर्स हो। तुम आ रहे हो इतनी गरीबी से और कितनी दर्दनाक जगहों से कि तुम्हारे को कोई तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को कैसे यूज करा हमें नहीं पता। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ पोर्शन ऑफ पीपल जो कि हो सकता है भाई नार्सिसिज्म में बहुत हाई हो, उनको कि भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैच्योरिटी आई नहीं अपनी जिंदगी में और मैं करना चाहता हूं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई वो यूथ, यंग, आपकी डिसीजन मेकिंग न्यूरो साइंस से लेके 50 जगह पे रिसर्चेस है, 18-17 यही सालों में आपकी डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो रही होती है, आपकी फॉर्म होना मतलब अभी काम चल रहा होता है, बहुत ही सुपीरियर नहीं चली होती, आपकी कंठस्थ डिसीजन मेकिंग नहीं होती, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होती, इतनी सारी चीजें, क्योंकि वो ब्रेन रीजन्स फॉर्म हो रहे हैं अभी भी और वो कंटिन्यू होते रहेंगे। एक तो तुम्हारे पास जहां ये ठप्पा लग गया तुम काइंड ऑफ एक बॉक्स में भी फंस जाते हो और फिर इस बॉक्स में तुम्हारे पास आउट भी नहीं मिलता। सनी लियोन एक बहुत ही एक्सेप्शनल वो ये हो गई कि भाई वो इंडिया आई और इंडिया में हमने ऐसा पूछ दिया उनको, लेट्स बी रियल, कि भाई वो पब्लिक सेलिब्रिटी बन गई। उसके बाद उसका धंधा चल रहा है भाई, पिक्चर करके वो करके। कितनी पॉर्न स्टार्स हैं जो कि अमेरिका में है, जो तुम्हारे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से आ रही हैं, इनके कौन सा अपने देश में चल रहा है, इनमें कोई थूकेगा नहीं। बहुत सत्य वाली बात है, नहीं थूकने वाला इन पे। हम तुम्हें सडनली वो थोड़ी बना देंगे, सर पे ताज बना के सबसे फेमस इंसान बना दिया देश का, जो कि थी ये जब ये बिग बॉस पे आई थी। पूरा आई थिंक 2-3 साल तक पूरा देश नाच रहा था इसके अराउंड, पिक्चरें देने लग गए लोग उसको, गाने देने लग गए, खत्म बात। तुमने तो ये एक लकी स्टोरी हो गई, ये एक एक्सेप्शन की स्टोरी हो गई और उसको भी कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। यहाँ पे कितनी वो है तुम्हारी एक्ट्रेसेस और सब जो काइंड ऑफ ओनली फैंस ये सब करती हैं, वो उनको उस लेवल का फेम नहीं मिला जब पब्लिक ने उसको अपना लिया। It's not that straightforward. Like I've said, many of the people who pick this path are extremely young. Listen, we don't tend to make the best decisions when we're young. They see the promise of money, fame, and a rock star lifestyle, and they immediately jump into it without a second thought. Many of these production companies target these young women for that specific reason. And lots of other people genuinely just do it for the money, not necessarily because they want to. Like for example, Brianna Coppage was a teacher in St. Louis, Missouri, and really loved her job, but being a teacher was not enough to pay the bills. She started OnlyFans as a side hustle and ended up making more than double her salary as a teacher. She had no intention to leave her job as a teacher, but once the school found out about her account, she was fired. And she then focused on doing OnlyFans full time because it was her only option. And it's a damn shame that she was only doing it to get the bills paid, not because she liked doing it. Now, the industry has improved over time and has learned from history. Many recruiters, we don't know that. Maybe she liked doing it as well. Like, reality is always complex. It's multifaceted. It's never one. She didn't like doing that. She wanted to teach. No, maybe she wanted to do both of those things. Production companies act much more ethically to their cast and crew. People who hire these actresses fully make sure that they are only doing it because they are passionate about the business and don't want them to make a mistake that they will later regret. And many popular websites have now started implementing much more control to prevent non-consensual content from being uploaded. However, the abuse and the consequences still remain. Even if They it has always improved, remain because the industry, in its simple terms, the nature of which is कि भाई हमें सिमुलेट करना है इंटीमेसी को। सेक्सुअल इंटीमेसी के एक्चुअल में पेप्टिजर्निक रूट हैं, यानी कि जब आप प्यार करते हो किसी के साथ तो आपके शरीर में से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं जो लव हार्मोन्स हैं। यानी कि बायोलॉजी ने इंश्योर किया है प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, एंडोजेनस ओपियोइड्स, ऑक्सीटोसिन, ये क्या हैं? ये तब रिलीज होते हैं जब मां अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है। सेक्स का बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी फंक्शन है कि आपका अटैचमेंट क्रिएट हो जिसके साथ आप कर रहे हो। तभी तो लोग कैजुअल ये सब चीजें बायोलॉजिकली विल नॉट मेक सेंस, क्योंकि इनका पीछे इन्होंने एक एवोल्यूशन नामक एक चीज है जिसने इंसानियत को ऑलरेडी रचा है
बेस्ट वे में एक दूसरे के साथ किसी तरह से फंक्शन करने के लिए। और उसने पूरी बायोलॉजी इसकी वजह से उसके अराउंड क्रिएट हुई है। अब तुम बायोलॉजी को इग्नोर कर दो, ये हो ही नहीं सकता। हम मुखौटा पहन के चाहे कितना कह लें बढ़िया है बढ़िया 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 है, सच्चाई क्या है असली में हमारी जिंदगी में नहीं, जब तक एक हाथ से दूर है चीज तब तक तो बढ़िया है ना, तब तक बढ़िया, क्योंकि मेरी जिंदगी में नहीं है ये, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन रियलिटी में क्या तुम अपनी जिंदगी में अभी तुम्हारे ओपिनियन पूछें, कैजुअल सेक्स नहीं, जिसके साथ शादी करनी है भाई उसका पार्टनर सबसे कम होना चाहिए, बॉडी काउंट सबसे कम होना चाहिए, मुझे कोई बॉडी काउंट 0 हो तो सबसे आइडियल है, बढ़िया है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? सारी जितनी भी तुम्हारे मुंह से बातें निकल रही हैं, मतलब क्या? इनका मतलब है तुम्हें एक्चुअली में ये चीज नहीं देखनी चाहिए। ये लोग जितनी भी चीजें कर रहे हैं बाय डेफिनेशन तुम कह रहे हो, ये तुम डिसएग्री करते हो उनसे, ये गलत है। रिश्तों का कोई महत्व है, मूल्य है, सेक्स का कोई महत्व है, मूल्य है, कोई मतलब है उसके पीछे। कभी दो प्राणी सिंपल सेक्स ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, लव हार्मोन है मेरे भाई। माता जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, अपने उसको गले से प्यार से रखती है और बच्चे का HPA एक्सेस लिटरली 50% कम हो जाता है, स्ट्रेस उस बच्चे का चला जाता है क्योंकि उसको प्यार मिल रहा है, बेसिक अटैचमेंट फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ अटैचमेंट थ्योरी। वो सेम प्रोसेस हो रहा है जब तुम्हारा अटैचमेंट एक दूसरे इंसान के साथ फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अटैचमेंट सिर्फ माता पिता के साथ नहीं होते। एवोल्यूशन ने मेक श्योर किया कि आप अटैचमेंट्स, अडल्ट अटैचमेंट्स भी बिल्ड करें जिन्हें हम प्यार कहते हैं। अब अडल्ट अटैचमेंट में क्या हो रहा है भाई? यही तो है, जब तुम किसी के साथ प्यार कर रहे हो तो वो सेम अटैचमेंट वाले सेम हार्मोन्स निकल रहे हैं, पेप्टाइड्स निकल रहे हैं तुम्हारी बॉडी से, मतलब बॉडी के अंदर। क्या मेक श्योर कर रहे हैं? क्या आप एक रिश्ता बिल्ड करो इस इंसान के साथ। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, वो रिश्ता कहीं बिल्ड नहीं हो रहा, हम एक्टिंग कर रहे हैं उस रिश्ता बिल्ड करने की। पॉसिबल है, कॉमन सेंसिकली पॉसिबल है, साइंटिफिकली डजंट मेक सेंस।